Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Forges Academy. How are you all doing on that side? I'm doing perfectly fine on this side, and I'm sure you guys must be doing pretty much great on that side as well, right? So, UPSC has released the notification for CDS 1, the CDS first session of 2024 examination, right? And the notification came on 24th of December itself, and you can get the detailed notification on the UPSC website as well. But I wanted to cover a small point, a few of the small but important point that I wanted you guys to take you to keep in mind, right? So the first thing I wanted to mention that your last date to fill the application form is 9th of January. Okay, please keep that in mind, as if you wait for the later times, it might get dicey. You might face some technical error on that side, and so I don't want you guys to face those issues. So please go and fill your applications right away. Okay, that's the first thing I wanted to mention. And since the last few session of examination, UPSC has introduced something called OTR, okay, one time registration. And this one time registration can be done on the UPSC website itself, and it can be done at any point of time, irrespective of the fact whether you are eligible or not, or irrespective of the fact for what XYZ. You are applying for civil service, you are applying for CAPF, you are applying for NDA, CDS, or whatever XYZ examination. Okay, so you got to go on that OTR, or you got to go and fill this one time registration form on UPSC website, right? So we'll talk a bit more about the notification. So the online application can be filled up to 9th of January, as I told you earlier, 6 p.m. Okay, do not be in the impression that on 9th of January you can finish this by 2400 hours. Okay, what do I mean by 2400 hours? Is 12 o'clock in midnight. No, you got to finish it off by 6 p.m. itself, right? Your admit card will come 7 days before the commencement of examination. तो आपकी एग्जामिनेशन कब होगी? 21st of April को एग्जामिनेशन है, right? Everybody knows it, but those who do not know it, for them I'm telling that 21st of April is your examination date, and 7 days before your examination you will be getting your admit card, okay, which you will have to download from the UPSC website, right? और ये आगे कहते हैं कि नो ये एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट। हालांकि कोई भी कम्युनिकेशन आपको जो है बाय पोस्ट नहीं होगा, इसलिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे लगे रहना है, ठीक है, देखते रहना है। और अगर वहाँ मान लो बिजी हो, अपने प्रिपरेशन में बिजी हो, तो ये काम हम आपका कर देंगे, ठीक है। आई विल मेक स्मॉल शॉर्ट वीडियोस फॉर यू गाइस, so as to keep you updated as to whatever is happening on that side, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी वैकेंसीज की बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे तो वैकेंसीज इस बार बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे वैकेंसीज है। आईएमए के लिए 100 वैकेंसी एज यूजुअल के, आईएनए के लिए 32 वैकेंसीज एज यूजुअल, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 3 वैकेंसी जो होंगे तो आपके एनसीसी सी के थ्रू, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए होंगे, है ना। और यहाँ पे आर्मी विंग में क्या है, इसको पढ़िए, इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एनसीसी सी, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो वो इस 100 सीट्स में से 13 सीट्स क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही सीट क्लेम करना है, मतलब 13 बच्चे ऐसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 13 बच्चे जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट बी ग्रेड हो जिसका उस एनसीसी सी सर्टिफिकेट में, they are eligible to be inducted in these 13 vacancies. So keep that in mind, right? Okay. So it's a good opportunity for the NCCC certificate holder, guys. So please go all your guns blazing over here, right? Okay. ओटीए की बात करें, ओटीए चेन्नई, मद्रास, ठीक है, आपका तमिलनाडु में है। इसके लिए 275 सीट है। माई गॉड, दैट्स ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स, ओके।
I do not actually remember these many seats, these many vacancies for OTA before. Okay, please correct me if I'm wrong. Okay, as far as I remember, it was somewhere around 225 or something like that, somewhere hovering around 200. That's it I've ever known, right? Okay. For OTA, Chennai women candidates 35th SSC women candidate non-tech 18 सीट्स है, और अगर आप इसको पूरा ऐड करोगे तो ये आपकी टोटल वैकेंसी जो हो जाएंगे 457 हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो इस बारी वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है. यू हैव गॉट हेल अमाउंट ऑफ वैकेंसीज. मेरे को जहाँ तक याद है कि लास्ट टाइम व्हेन आई वाज क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस, at that point of time we had like close to 370 vacancies, right? Okay, and over here it's 357, sorry, 457 vacancies, right? So it's a whooping increase of 80 प्लस वैकेंसीज. ओके, जब 80 प्लस वैकेंसीज की बात हो रही है तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, अगर आप मान लो कट ऑफ से आगे पीछे एक आध दो नंबर राइट लेफ्ट होते हो, ठीक है, नॉर्थ साउथ होते हो, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो अहेड अबाउट इट, राइट? ओके, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इस चीज़ की. तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपके टोटल ऑल ओवर इंडिया में 70 प्लस एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं. ठीक है, आपके कई सारे सेंटर्स हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, ईटानगर हो गया, श्रीनगर हो गया. श्रीनगर उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ठीक है, और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है, गैंगटोक हो गया. ठीक है, तो आपके घर से जहाँ पे भी नज़दीक में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. जो भी आपका नियरेस्ट जो भी है आप उसको सेलेक्ट करें. ठीक है, बट यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा और डिस्क्लेमर बताना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. ठीक है, तो छोटा सा डिस्क्लेमर ऐसा है कि कहते ये है कि एप्लीकेशन शुड नोट दैट देयर बी ए सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड टू ईच ऑफ द सेंटर्स एक्सेप्ट. ठीक है, मतलब चेन्नई, असम, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, इन चारों सिटी को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जितने भी सिटी होंगे, ठीक है, सारे में एक अपर लिमिट होगा. ठीक है, अपर लिमिट होगा सो एज टू हाउ मेनी applicants, how many examinees they would be you know accepting in that examination center, in that particular examination center. Let's say I'm based out of Varanasi particularly. Okay, let's say कि इनकी कैपेसिटी है 10,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अकोमोडेट करने का, है ना? तो 10,000 स्टूडेंट्स को तो अपना मिल जाएगा पहला चॉइस. फिर उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन डालोगे तो वाराणसी सिटी जो है रेड हो जाएगा, समझे? फिर वो आपको चॉइस फिर चूज करने का वो लोग मौका नहीं देंगे, है ना? तो आप जो है, इसलिए ये कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, और आपका जो सेंटर एलोकेशन होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, राइट? है ना? और एक और चीज ये भी कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग द अफोरसेड प्रोविजन, कमीशन रिजर्व्स द राइट टू चेंज द सेंटर्स एट देयर डिस्क्रेशन इफ द सिचुएशन डिमांड. ठीक है, अब इनका मर्जी है, अगर ऐसा कोई अनफोर्सीन या फिर कुछ इमरजेंसी वगैरह हो गया, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अपने डिसीजन पे सेंटर चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, मेरे साथ पर्टिकुलरली ऐसा हुआ है. आई गेव पटना एज माय एग्जामिनेशन सेंटर. आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, दैट वाज 2018 I guess, right? Okay, so what happened that Patna center was overall disbanded for some reason. I don't know what that reason was, and I was allocated Allahabad region. Okay, इलाहाबाद रीजन, और मेरा मतलब इसी चीज के कारण मन नहीं हुआ कि हम एग्जामिनेशन जाए देंगे. ठीक है, दैट वाज द रीजन. ठीक है, तो आप ये चीज बड़ा केयरफुली फिल करना. ठीक है, और अगर आगे पीछे डेट्स या फिर सेंटर होता है तो आप जो है इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना. आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एलिजिबिलिटी की थोड़ी सी बात करते हैं. ठीक है, तो नेशनैलिटी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सिटीजन होने चाहिए, और नेपाल के सब्जेक्ट होने चाहिए, और पीआईओ होने चाहिए. ठीक है, आप जो है पीआईओ होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम
विद एन इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ठीक है। आप PIO हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, बट आपके पेरेंट्स जो है इन सारे कंट्रीज में चले गए, लेट्स से फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, बट फिर आप आ गए, ठीक है, आपकी वहीं पे पैदाइशी हो, ठीक है, यू गॉट बर्थ इन ऑल दिस कंट्री बट देन यू रिटर्न, ओके, फॉर एन इंटेंशन टू सेटल ओवर हियर, एंड ऐसे केसेस बहुत कम होंगे, आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट स्टिल लाइक यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर दैट, and provided that candidate belonging to 2 and 3 above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India, ठीक है, सॉरी। तो आप नेपाल के सब्जेक्ट हो या फिर PIO हो, जो कि यहाँ से आप आए हो, इन सब कंट्री जो लिस्टेड है, तो आपको जो है गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देगी कि जो है आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी देंगी, तो आप जो जा करके एलिजिबल होंगे, है ना। However, certificate of eligibility will not be necessary in case of candidates who are Gurkha subjects of Nepal, ठीक है। तो गुरखा जो होते हैं, ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा नाम है फौज में, है ना, नॉट ओनली इंडिया के फौज में, इवन इन वेस्टर्न एंड इंटरनेशनल military as well. They are very tough warriors. Okay, so their cookery and whatnot, and the war stories that they have fought. Okay, it's more like a fairy tale. Okay, so इनको अगर आप गुरखा कैंडिडेट हो तो आपके लिए ये जो है ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, भले ही आप नेपाल के सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। बाकी के नेपाल के सब्जेक्ट के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लगेगी, है ना, ठीक है। और देखते पढ़ते कैंडिडेट इन हुज केस a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination provisionally subject to necessary certificate being given to him or her by the government before declaration of the result UPSC। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस वगैरह पे बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्स का ऐसा है कि ओनली दी gentlemen cadets, main cadets are eligible for IMA, INA, and OTA. Okay, and IMA, INA, AFA, and OTA. Right? Okay, that's it. They are eligible for. And women candidates, lady candidates, they are eligible only for OTA women entry. Okay, OTA women non-tech entry. That's what they are eligible for, and for them the vacancy is 18. Okay, we talked about the vacancy earlier. Okay, we'll talk about little bit about the age limit for IMA. Okay, unmarried male candidates born not earlier than 2nd January 2001 and not later than 1st January 2006 ओनली आर एलिजिबल, ठीक है। तो आप जो है ये दोनों डेट्स के बीच अगर आपकी जन्म हुई है, ठीक है, मान लो आपको 2nd जनवरी 2001 या फिर 1st जनवरी 2006 है, तो इन दोनों डेट्स को भी आप इंक्लूडेड है, ठीक है, दिस टू डेट्स आर इंक्लूडेड है ना, बट इसके पहले नहीं होना चाहिए। 1st जनवरी 2001 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल, राइट, ओके। और 2nd जनवरी 2006 होता है तो इन दैट केस आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। पहले केस में आप ओवर एज होंगे, सेकंड केस में आप अंडर एज होंगे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है फॉर INA इंडियन नेवल एकेडमी अनमैरिड होने चाहिए, यहाँ पे भी अनमैरिड होने चाहिए। मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 2001 एंड नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2006, ठीक है। तो 2nd जन 2001 से लेकर के, ठीक है, 1st जन 2006 तक की आपकी जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी है IMA और INA के लिए, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एयरफोर्स एकेडमी 20 to 24 years as on 1st January 2025, that is born not earlier than 2nd January 2001 and not later than 1st January 2005, ठीक है। तो ऐसा है कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ जो है AFA के लिए आपकी अगर 2nd जनवरी 2001 से लेकर के 1st जनवरी 2005 के बीच अगर आपका होता है, ठीक है, तो आप AFA के लिए
एलिजिबल होंगे। ठीक है, रनिंग में बता देता हूँ, जो जिनका सीपीए होल्डर है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के होल्डर है, सीपीएल होल्डर है सॉरी, तो डीजीसीए, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अगर आप सीपीएल होल्डर है तो 2 साल का आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट जो है 26 ईयर्स हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है, बट आई नो अगेन दैट इन दिस केस आल्सो the number of this sample will be very less. Okay, there are very few person यार जिनको अगर सीपीएल का लाइसेंस अगर होगा ही तो फौज में क्यों जाएंगे, वो तो फिर अपना कमर्शियल पायलट अपना जंबो जेट्स वगैरह उड़ाएंगे ना, है ना। ठीक है, तो नोट पढ़ते हैं क्या लिखा है। कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। ठीक है, 5 ईयर्स मस्ट बी अनमैरिड। ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी का मैरिड अनमैरिड वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, आईएमए और आईएनए के लिए अनमैरिड होना मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर 25 साल से कम का उम्र है तो अनमैरिड होने चाहिए, और अगर 25 साल से ज़्यादा का उम्र है, ठीक है, मैरिड कैंडिडेट्स अबव 25 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, but in specifically a few of the branches, right? Okay, like AFA and OTA maybe. Yeah, we'll go ahead and see. But during training period, they will neither be provided married accommodation nor they nor can they live with family out of the premises. ठीक है, मतलब आप फैमिली के साथ जो है ट्रेनिंग के टाइम में, इवन इफ यू आर मैरिड, cannot be, right? आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे इनकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स फॉर मेन। ठीक है, तो ओटीए मेन की बात कर रहे हैं, इनकी एलिजिबिलिटी ये जो है 2 जन 2000 से लेकर के 1 जन 2006 के बीच अगर आपका है, दोनों डेट्स इंक्लूड करके, तो आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल है ना। हालांकि ये मैरिड अनमैरिड वाले जो सैंपल साइज होते हैं बहुत कम होता है। ठीक है, ये डिवोर्सी, विडोवर, विडो जो भी कॉन्सेप्ट है, आप डिटेल नोटिफिकेशन देख करके एक बार खुद से चेक कर लेना। ठीक है, जस्ट इन केस कि आपके केस में ऐसा होता है, और अगर मान लो आपको स्पेसिफिकली ऐसा डाउट है, अगर आपके केस में ऐसा डाउट है तो आप कमेंट पे लिख के बता दो, आई एड्रेस योर डाउट्स। ठीक है, for OTA, SSC, women non-tech course, unmarried women, issueless widows who have not remarried, and issueless divorcees in possession of divorce documents who have not remarried are eligible, right? Okay, या तो अनमैरिड हो या तो उनका issueless divorce है। ठीक है, they should have been born not earlier than 2nd January 2000 and 1st January 2006। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप देख लेना, है ना, कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ ओटीए वेमेन के लिए भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आपकी अनमैरिड और इशूलेस वगैरह की जो भी कहानी है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले में कहते हैं कि नोट 1 में इन्होंने कहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वो आपका जो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो 10th स्टैंडर्ड के जो मार्कशीट, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के जो मार्कशीट चाहे आप किसी भी बोर्ड से किए हो, सीबीएसई, आईसीएसई, तमिलनाडु बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, वॉट एवर बोर्ड, 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में आपकी एक डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, वही आपका यहाँ पे वन एंड ओनली फाइनल कंसिडरेशन होगा, है ना। ठीक है, तो अब नोट 2 पढ़ते, कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट वंस अ डेट ऑफ बर्थ has been claimed by them and entered in the records of the commission for the purpose of admission to an examination. No change will be allowed subsequently or at the subsequent examination or any ground whatsoever। ठीक है, तो आप वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसा होगा कि आप एक बार जब आप फॉर्म वन टाइम ओटीआर जब डाल दिए, ठीक है, यूजिंग दैट फॉर्म इटसेल्फ आप जो है, जैसे हमने बताया कि आप सिविल सर्विस, सीएपीएफ, सीडीएस, ठीक है, एनडीए वगैरह वगैरह के लिए, मतलब जब जब आपकी जैसे जैसी एलिजिबिलिटी आते जाएगी वैसे वैसे आप जो है इसको अप्लाई करते जाओगे। ठीक है, तो ओटीआर भरते समय आपसे जो है डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, है ना, डीओबी मांगेंगे, और ये एक बार जो आप एंटर कर दिए ये आपका लाइफ टाइम जो है आपका क्या होगा कि यही चीज रहेगा, है ना। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज इट, बट
there is a small disclaimer. Okay, I do not suggest you to use this argument which I am going to speak after. But okay, तो ऐसा है कि आप अगर कमीशन से विद इन गिवन कंसिडरेशन टाइम, ठीक है, उस पीरियड में आप उनको टच में आते हो और उनको बोलते हो कि मेरा जो है टाइपिंग एरर हो गया, गलती हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो दे मे कंसिडर योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इन डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल ध्यान से भरना, ठीक है, क्योंकि एक बार गलती होगा तो फिर वो फिर सही नहीं होगा, ठीक है। नॉट जस्ट योर डेट ऑफ बर्थ, योर ओन नेम along with initials, ठीक है, or your father's, your mother's name and date of birth. So all these things are should be taken care of like anything, है ना, ठीक है। Please do not make mistake on that. आगे बढ़ते हैं ladies and gentlemen. We'll talk a little bit about the educational qualification over here, ठीक है। IMA के लिए और OTA के लिए, IMA एंड OTA इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। कौन सी डिग्री है इसका कोई मतलब नहीं है। 50% मार्क्स है, 40% मार्क्स है, 89% मार्क्स है, 99% मार्क्स है, 100% मार्क्स है, एवरीबॉडी इज एलिजिबल। यू आर सपोज टू पास, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप पास हो तो आप एलिजिबल हो, दैट्स इट, ठीक है। एफकैट में ऐसा रूल नहीं है ना, ठीक है। तो बात हम लोग बाद में करेंगे, है ना, वो हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोग वीडियो नहीं देखे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। INA की बात करें, इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें, तो एक थंब रूल है कि आप जो है इंजीनियर होने चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपको कोई मार्क्स वगैरह का चिंता नहीं करना है, आपको बस जो है आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और आप पास होने चाहिए, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, ठीक है, आपकी प्री फ्लाइंग कोर्स होगी आपके यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी में, तो आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपकी कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा कंडीशन ये है कि आपके 10+2 लेवल पे, है ना, 10+2 लेवल पे आपकी जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए, ठीक है। काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर हम BA हैं बट हम साइंस से 12th किए हैं, ठीक है, आर दे एलिजिबल? यस, दे आर एलिजिबल फॉर AFA, ठीक है। कहते हैं सर हम BA हैं और हम आर्ट्स से पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक बार फिर से है, क्या आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा, ठीक है, क्या आपने ऑप्शनल लेके भी पढ़ा ये दो सब्जेक्ट को? अगर इसका आंसर हाँ है तो आप एलिजिबल हो, अगर इसका आंसर ना है तो आप एलिजिबल नहीं हो। किसके लिए? एयरफोर्स एकेडमी के लिए। बट स्टिल, आर यू एलिजिबल फॉर IMA and OTA? Yes, you are still eligible for IMA and OTA because you hold a degree. You are supposed to hold any degree. Okay? थोड़ा सा फीस का ही बात करते हैं, ठीक है। फीमेल्स कैंडिडेट, ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स, ठीक है, ये ऐसे कैंडिडेट जो है उनको एग्जेम्पशन है, फीस से बिल्कुल एग्जेम्पशन है। और बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो EWS हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को फीस पे करना होगा। फीस इज वेरी नॉमिनल, 200 रुपीज, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे आप जो फॉर्म जब डालोगे तो उसमें आपका, अगर आप जो है चूज करते हो, मान लो OBC NC OBC आप अगर आप चूज करते हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर सर्टिफिकेट डेट मांगेंगे आपसे, है ना। तो ऐसा है कि आप जो है ये सारे जो इन्फॉर्मेशन जो ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो अपने बैकएंड इंफॉर्मेशन के लिए आपसे ये चीज, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, जनरल के कितने बच्चे आ रहे हैं, OBC के बच्चे कितने आ रहे हैं, ST SC के बच्चे कितने आ रहे हैं, तो वो उनका है, वो अपना कैलकुलेट करते हैं बैठ के अपना बैकएंड में, है ना। फिर उस पर रिपोर्ट बनाते हैं साल के एंड में। तो आपको इससे मतलब नहीं है तो आप चाहे कुछ भी भर दे आप एप्लीकेशन फॉर्म में, ST ST वॉट एवर, यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल बिल्कुल आपके प्योरली प्योरली मेरिट पे होगा, ठीक है। देर इज नो सच थिंग कॉल्ड रिजर्वेशन ओवर हेयर, ठीक है। रिजर्वेशन ओवर हेयर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि OBC को 27% मिलेगा और EWS को 10% सीट्स मिलेंगे, ठीक है, SC को 15 और ST को 7.5, ऐसा यहाँ पे नहीं, ठीक है।
दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे। ठीक है, इट इज essential for the applicant to register himself herself first at one time registration OTR platform, ठीक है, available on commissions, and then proceed for the filling of online application for the examination. OTR has to be registered only once in a lifetime, ठीक है, once in a lifetime। ये बात हम आपको बता रहे थे कि आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही से फिल करना है। ठीक है, और ये जो है आपको कभी भी कर सकते हो। दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ही और शी कैन प्रोसीड स्ट्रेट अवे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपने OTR पहले से फिल कर रखा है, मान लो कि आपने, ठीक है, CDS 2023 2 भरा था, 2022 भरा था, मान लो आप रिपीटर हो। ठीक है ना, तो ज्यादातर बच्चे तो रिपीटर ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये OTR वाले तो आप भरे ही होगे पहले से ही। ठीक है, तो OTR भर लिए हो तो आप जाओ, आप आराम से अपना क्या करो कि फॉर्म डाल दो, है ना। थोड़ा बहुत और बात करते हैं कि ये आपकी मिसलेनियस बातें हैं। ठीक है, और जब आपकी रिजल्ट आ जाएंगे और हम आई प्रे टू द गॉड एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द हार्ड वर्क एंड ऑल द लॉरेंस टू यू। आप मान लो कि आप पास हो गए। ठीक है, मतलब आप पास हो गए एग्जाम में, आपके रिटन एग्जामिनेशन में आपकी जो 7,000 प्लस जो रिजल्ट्स आते हैं इस बार ये अच्छे आएंगे। ठीक है, इस बार आई एक्सपेक्ट कि 8,000 प्लस रिजल्ट्स आएंगे बच्चों के। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज हैव इंक्रीज, इट हैज बिकम 450 प्लस, है ना। तो जो आर्मी के जो जिनका जिनका फर्स्ट चॉइस है और आप पहली बार आर्मी एसएसबी देने जा रहे हो, तो आप joinindianarmy.nic.in पे जाना, उस पे साइन अप कर लेना। ठीक है, इस पे साइन अप कर लेना, है ना। ठीक है, joinindianarmy.nic.in करके। ठीक है, इंडियन आर्मी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना। तो उसमें ऑफिसर एंट्री पे जा करके साइन अप कर लेना। ठीक है, ऑफिसर वाले सेक्शन पे। तो फिर आपको वहां से आपका एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा, और फिर आपको उसी पोर्टल पे आपका डेट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट वगैरह होगा, एसएसबी अलॉटमेंट वगैरह होगा, है ना। और एक छोटी सी और बात है कि यहाँ पे CPSS PABT के बारे में बात किए हैं। ठीक है, every candidate for the Air Force and Naval Aviation is given pilot aptitude test only once। ठीक है, मतलब कहते हैं कि आप जो है आप एयरफोर्स में जाओ। ठीक है, नेवल एविएशन की बात करो। ठीक है, मतलब आपको पायलट बनना है बेसिकली, चाहे आप हेलीकॉप्टर बनो, ट्रांसपोर्ट बनो, फाइटर बनो, जैसा ही बनो। ठीक है, ट्रेनर तो काफी बाद में बनते हैं। ठीक है, इज गिवन पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली वंस। ठीक है, तो आपको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा आपको एक ही बार देना है। ठीक है, द ग्रेड secured by him at first test CPSS computerized pilot selection system and or PABT will be therefore hold good for every subsequent interview at the Air Force Selection Board. Those who have failed Indian Navy Selection Board those who have failed Indian Navy Selection Board Computer Pilot Selection System CPSS and or PABT earlier, and those who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है स्पेक्स लगाते हो परमानेंटली, ठीक है, स्पेक्टिकल लगाते हो, तो इसके भी थोड़ी सी लीवे है। ठीक है, स्पेक्टिकल लगाते हो तो थोड़ा सा आपको लीवे यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसका हमने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, कि आप जो है स्पेक्स अगर है मान लो तो भी आप पायलट बन सकते हो। ठीक है, अगर आप हैबिचुअल वेयर करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको चश्मा हट जाए। चश्मा कैसे हटेगा? सर्जरी, राइट, दैट्स द आंसर। ओके, सो इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाए हैं, हम आपको वो भी आई बटन पर डाल देंगे, आपको एक बार देखो। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखो। ठीक है, ऐसा होता है कि जिन बच्चों का मतलब पायलट बनने का कीड़ा होता है उसके अंदर वो बनते हैं। ठीक है, चाहे वो जैसे बने। ठीक है, तो चाहे वो उनको चश्मा लगा हो, ये हो, वो हो, आगे हो, पीछे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाते हैं बेसिकली, है ना। तो बेसिकली हम ये कवर करना चाहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज गो हैड एंड सब्सक्राइब, शो योर लव टू मी। ठीक है,
और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ठीक है, छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि थोड़ा सा CDS और FCAT दोनों को लेकर के, ठीक है, हम लोग फोकस होंगे, ठीक है, दोनों को लेकर के कंबाइंड फोकस होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है चीज़ें आपका फोकस ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के रहेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको GS और इंग्लिश भी बीच बीच में आते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहेंगे, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हम एक पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट पेड कोर्स इज नो लॉन्गर पेड, इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री फॉर यू ऑल, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे अगर आपके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं तो हम लोग फिर से बैठेंगे साथ में और अपन लोग बातें करेंगे कि आपकी मेंटरशिप्स वगैरह के बारे में बातें करेंगे और we'll create a module and an SSB refresher course for the students those who pass the written examination। क्या है, थोड़ा सा उनसे बातें करेंगे क्या है कैसा है। आप मेरा जो 15 अटेम्प्ट्स में जो हमने क्या क्या गलतियां किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, सारे कहानियां सुनेंगे और आपके क्या लगता है, हमें क्या लगता है, हम लोग सारे एक दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स होकर के, विद एन इंटेंशन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड टू बी इन अकेडमी, राइट, ओके। लगे लगे इंस्टाग्राम का हैंडल और यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरे से टच में आना है तो नंबर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, व्हाट्सएप करो, ठीक है। हम एक आध दिन में हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो बड़ी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।